Hi everyone. We all know that when it comes to polity in UPSC preparation, there's one book we all swear by, and that is M. Lakshmikant. But let's be honest, as beginners, हम सब लक्ष्मीकांत को शुरू तो फुल जोश में करते हैं, सोचकर कि पहली बार में ही इसे हम 10-15 दिन में पूरा फिनिश कर देंगे. But reality hits soon. बस 3-4 चैप्टर्स के बाद ही we get lost in articles, amendments, tiny facts and confusing political concepts. फिर वही लक्ष्मीकांत जो इनिशियली इंटरेस्टिंग लग रही थी, बोरिंग, ड्राई और एक रूल बुक जैसी फील होने लगती है. But what if I tell you the real problem is not the book, not the information. The problem is the way we read this book. And once we fix that, Lakshmikant actually becomes most easiest and most rewarding book of our UPSC preparation. Because mind it, कि अगर हमने इसे सही तरीके से पढ़ लिया ना, तो सिर्फ एक यही बुक हमें मिनिमम 22 to 28 मार्क्स प्रीलिम्स में इजीली दिला सकती है. So today in this video, I'll share with you कि exactly हमें as a beginner कैसे पढ़ना है लक्ष्मीकांत को. How to divide the chapters smartly so you don't feel overwhelmed. How to make short notes that actually stick in your memory. Revision method that toppers use to retain 90% of the polity before prelims and mains. Because देखो यार, this isn't about mugging up those 800 pages. It's about building a flow of concepts where every chapter feels connected like a story. Yes, by the end of this video मैं डिस्कस करूंगी प्रीलिम्स में पॉलिटी का एग्जैक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न, किस तरीके से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है और कौन से वो मोस्ट रिपीटेड एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जिनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. ठीक है. But yes, before we move ahead, I want to discuss that I got many doubts regarding Polity's Lakshmikant book. कि almost हर chapter में ना there are some complex areas और topics जो सिर्फ पढ़ने से बिल्कुल समझ नहीं आते. And अगर उन्हें समझने के लिए YouTube पर जाएं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. उसके लिए क्या करें? And क्या ये complete book PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है for ease of use? And also सिर्फ simple reading से ना confidence नहीं आ रहा है, तो how to manage that in Polity? So keeping all this in mind, I will today highly recommend this official polity courseware by M. Lakshmikant sir, the author of this book himself, available on McGraw Hill's website. जहां हमें कलर्ड ई बुक के साथ साथ ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए 40 प्लस वीडियोस मिल जाते हैं फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रिटेंशन. एंड नॉट ओनली दिस, sir has also provided past 13 years prelims and 12 years of mains previous year questions with proper detailed solutions, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम टेस्ट कर सकते हैं, एग्जाम का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ सकते हैं एंड अपनी अप्रोच, अपनी राइटिंग स्किल को इमेंसली इंप्रूव कर सकते हैं जस्ट ऑल इन वन प्लेस विदाउट वेस्टिंग टाइम. So it's a very meticulously designed initiative with a very high ROI. You can join this courseware on McGraw Hill's website using the code TBF to avail straight 25% discount as a Diwali sale. And also this courseware is available on Amazon and Flipkart as well. Link or code description में mention है, so join the program and feel the difference yourself. तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर हमें लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है. ठीक है, तो देखो अपने लक्ष्मीकांत को पूरे 21 डेज दिए हैं, जिसमें हम बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से पूरी लक्ष्मीकांत को आराम से कवर कर सकते हैं एज आर फर्स्ट रीडिंग. एंड इवन इफ अगर आपने पहले से भी लक्ष्मीकांत कभी भी पढ़ी हुई है, इफ दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और द फोर्थ अटेम्प्ट, डोंट वरी, you must have heard one line that you have to unlearn things to start learning it better again. तो इसलिए अनलर्न करो और दोबारा से जस्ट गिव लक्ष्मीकांत प्रॉपर 21 डेज, जिसमें अच्छे से ये पूरा लक्ष्मीकांत कवर हो जाए और आपके आराम से प्री एंड मेंस का हेडेक व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी बिल्कुल फिनिश हो सके. ठीक, करना क्या है एक एक करके ये समझते हैं. सबसे पहले डे नंबर 1 पे हमें करना है लक्ष्मीकांत को डायरेक्ट नहीं उठाना है. उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स एंड कितने शेड्यूल्स हैं ये हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनली कितने थे और अब ये कितने हैं. इसके लिए ऑलरेडी मैंने ये देखो वीडियो की हुई है निमोनिक वाली, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी. आप एक बार ही जाकर के इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे निमोनिक के थ्रू मैंने ये सारे पार्ट्स एंड सारे शेड्यूल्स कवर किए हुए हैं, सो दैट आप एक बार ही अगर इस वीडियो को देख लेंगे आप उसके बाद इसमें एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे. एंड ये बहुत ही बेसिक एरिया है जहां से सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस में तो और भी ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इन्हें हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है नो मैटर व्हाट.
तो ठीक है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको जा करके जरूर देख लेना। ठीक, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके क्या बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए, क्या सेलेंट फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जैसे कि क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ये आप मुझे अच्छा कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक्चुअली रिजिड है या फिर एक्चुअली फ्लेक्सिबल है या फिर इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक, ये आप मुझे कमेंट में बताना, सिर्फ अपने थॉट्स के हिसाब से, जितना भी आपको जनरल अवेयरनेस है, आपको क्या लगता है इस बारे में। ठीक, तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे लक्ष्मीकांत में, जो लेटेस्ट एडिशन है लक्ष्मीकांत की, उस हिसाब से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक, अच्छा, जिस दिन जो भी आप टॉपिक लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ उन टॉपिक से रिलेटेड भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाने हैं, सो दैट आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट रिवीजन जो आपने पढ़ा है ना, वो इनडायरेक्ट रिवीजन भी हो जाएगा और साथ के साथ में साइमल्टेनियसली आप टेस्ट भी कर सकते हो कि आपने कितना अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, देन आफ्टर डे 1 आता है डे 2। डे 2 में हमें क्या करना है, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट टेरिटरीज वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, एंड फंडामेंटल राइट्स पूरा नहीं पढ़ना है, टिल आर्टिकल 22 पढ़ना है। बेसिकली आपको राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम वाले जो आर्टिकल्स है इन द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, बस वहीं तक पढ़ना है। दीज आर चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 8 इन लक्ष्मीकांत। ठीक, एंड देन आपको सेम तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद डे नंबर 3 पे देखो देखो फंडामेंटल राइट्स अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक दिन में पढ़ना is next to impossible if you are a beginner, if you are reading it for the first time or even if for the second time। इसलिए मैंने डे नंबर 3 पे भी जो बचा हुआ फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है वो आपको कवर करना है टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, या आपको फिनिश करना है चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल राइट्स का। एंड इसके साथ साथ आपको डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों पढ़ने हैं, ये दोनों टॉपिक्स कवर करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 ऑन डे 3। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी मिलेगा, डीपीएसपी में भी मिलेगा एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, देन आफ्टर डे 3 आता है डे नंबर 4। डे नंबर 4 में हमें क्या करना है, जो लक्ष्मीकांत है उससे हमें कवर करने हैं चैप्टर्स अमेंडमेंट रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जिसपे पूरा केशवानंद भारती केस डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ साथ हमें कवर करना है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर्स, जैसे कि पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम्स, इसमें हम फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स सब कुछ समझेंगे, एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस भी कवर करना है। ठीक, सेंट्रल रिलेशंस बड़ा चैप्टर है, इसको आपको पूरा नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ हाफ करना है। कहां तक, आपको इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशंस ही कवर करना है सेंट्रल स्टेट के, और कुछ नहीं करना। ठीक, now these are corresponding chapter numbers 11, 12, 13, 14 and 15 in लक्ष्मीकांत। अतः जब आप सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे होगे ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको बार बार रिवाइज करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए आपको स्क्रीन पे ये मेरा एक शॉर्ट नोट मैंने प्रिपेयर किया था, सिर्फ एक ही पेज में पूरा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव वाला पार्ट मैंने समराइज किया हुआ है, तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, अब वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना फॉर योर रेफरेंस। इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिलेशंस वाला पार्ट है ना, ये इतना जरूरी नहीं है, अगर टाइम बचता है तो आप इसको लास्ट में देखना, इसको अभी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ सेंटर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव वाले रिलेशंस तक ही कवर करो। देन आफ्टर डे नंबर 4, डे नंबर 5 पे हमें क्या करना है, इंटर स्टेट रिलेशंस। कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि इंटर स्टेट रिलेशंस का कौन सा आर्टिकल नंबर होता है। ठीक, इंटर स्टेट रिलेशंस हमें कवर करना है, इमरजेंसी कवर करना है, इमरजेंसी में भी अच्छा मुझे बताओ कि नेशनल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल नंबर है, स्टेट इमरजेंसी की कौन से आर्टिकल नंबर है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी की कौन से आर्टिकल नंबर है, ये आपको कवर करना है। एंड पार्लियामेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसको आपको पूरा कवर नहीं करना है, जो एक सब टॉपिक है टिल सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, बस यहीं तक आपको कवर करना है। दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 ऑफ लक्ष्मीकांत। साथ के साथ आपको जैसे अगर पार्लियामेंट का आपने यहाँ तक कवर कर लिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको आप सेम डे पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक, देन आता है आपका डे नंबर 6। अब यहां से शुरू होती है कंपैरेटिव स्टडी, बिकॉज अभी तक जो डे नंबर 5 तक था ना, यहाँ पे हमने पूरा अपना जो एक कहते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक जो ढांचा है लक्ष्मीकांत को पढ़ने का या पॉलिटी को पढ़ने का, वो हमने कवर किया है। डे नंबर 6 से अब आपको पढ़ना है कंपैरेटिवली। कैसे पढ़ेंगे,
तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जो बचा हुआ पार्लियामेंट का पोर्शन है चैप्टर नंबर 22 का, वो कवर करें, सॉरी 23 का, वो हम कवर करेंगे। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। और इसके बाद आपको इंडेक्स में तो प्रेसिडेंट का चैप्टर दिखेगा, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है सीधे पार्लियामेंट के बाद क्या, स्टेट लेजिस्लेचर। हम, ताकि हमें साथ साथ डिफरेंस समझ में आ सके कि कहाँ कहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर से डिफरेंटली वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जॉइंट सेटिंग है, ये मुझे कॉमन में बताओ, ये पार्लियामेंट में है कि स्टेट लेजिस्लेचर में है, कि ये दोनों में चलता है, इसका कौन सा आर्टिकल नंबर है। जब आप कंपैरेटिव वे में स्टडी करोगे ना, तब आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू की ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए क्या क्या तरीका हम पार्लियामेंट में यूज करते हैं, किस तरीके से जो पार्लियामेंट का मेथड है वो स्टेट लेजिस्लेचर से डिफर करता है। ये जो डिफरेंसेस है, ठीक है, माइंड इट, ये जो डिफरेंसेस है ना, ये हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज यहीं पे यूपीएससी हमको ट्रिक करेगा, हमको ट्रैप करेगा, हमको फंसाएगा। इसीलिए यहां से एक्चुअली शुरुआत होती है कि पॉलिटी को हमें पढ़ना कैसे है, ताकि वो आपको याद भी रहे। बिकॉज ऐसे तो आपको ना इसमें इतने ज्यादा रूल्स मिलेंगे कि इसके लिए हमें ये मेजोरिटी चाहिए, फलाने की ये ओथ होती है, ठीक है, वो याद नहीं रहने वाली जब तक आप इसको कंपैरेटिव वे में नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो डे नंबर 6 पे आपको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कवर करना है पूरा। देन डे नंबर 7 पे हमको अब कवर करना है प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर करना है। ठीक है, पीएम नहीं करना है, आफ्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आपको गवर्नर पढ़ना है। एंड इसके साथ साथ टाइम अगर बचता है तो जो छोटे टॉपिक्स है, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, ये आपको कवर करना है। एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 18, 19, 30, यहाँ पर 30 वाला गवर्नर का हो गया। देन 24 एंड 25 जो आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री ग्रुप का हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसलिए पढ़ना बिकॉज मैं समझा चुकी हूँ कि कंपैरेटिव वे में स्टडी करना is very important in polity. Then after day number 7 comes the day number 8, जहां पे अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगेन कंपैरेटिव तरीके से इसको पढ़ना है। इसके साथ आपको कवर करना है कैबिनेट कमिटी वाला जो टॉपिक है फ्रॉम लक्ष्मीकांत। दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर 20, 21, देन 31, 32 एंड 22। ये आपको इसी सीक्वेंस में देखो पढ़ना है जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज माइंडेड एक बार अगर आप इसको इस सीक्वेंस में कवर कर लोगे ना, यू विल रीप द बेनिफिट्स लेटर, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये बिकॉज ये मैंने कई बार मिस्टेक्स कर करके खुद समझा है, रिकॉग्नाइज किया है, एंड देन इसके बेनिफिट्स भी देखे हैं। तो इसलिए जो तरीका मैं बता रही हूँ, एक बार आप इस मेथड से पढ़ के देखो एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ कि आपको कैसा फील हुआ इस तरीके से लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद। ठीक, देन आफ्टर डे नंबर 8 अब आता है डे नंबर 9, जिसपे हम जुडिशरी को टारगेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, बस यही 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, विच आर चैप्टर नंबर 26, 34 एंड 35। ठीक, एंड देन उसके बाद डे नंबर 10 पे क्या करना है, जो बचे हुए जुडिशरी का पार्ट है, लाइक ट्राइब्यूनल्स, देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, कंज्यूमर कमिश्नर, ये एक न्यू चैप्टर है जो ऐड किया हुआ है, जो बिल्कुल 8th एडिशन वाली लेटेस्ट लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें। अच्छा, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी लक्ष्मीकांत लेनी है, कौन सी एडिशन की, तो मैंने इसी वीडियो के शॉपिंग टैब में उसका इंग्लिश वर्जन एंड उसके हिंदी वर्जन दोनों को ही ऐड कर दिया है। आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक, इसके साथ कंज्यूमर कमीशन के साथ आपको एक और लोक अदालत वाला जो पूरा चैप्टर है उसको कवर करना। दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर नंबर्स 36, 27, 28, 37 एंड 38। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा ये जुडिशियरी पूरा 2 दिन में डे नंबर 9 एंड डे नंबर 10 पे फिनिश हो जाता है। देन आफ्टर दैट कम्स डे नंबर 11 एंड 12। अब यहाँ पे ये जो 2 दिन है ना, ये आपको देने हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, टैग है, इन सबको आपको कवर करना है। दीज आर चैप्टर नंबर 43 to 55। देखने में ये बहुत ज्यादा चैप्टर नंबर्स लग रहे हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स। आराम से आप इनको कंपैरेटिव वे में पढ़ते पढ़ते कवर कर सकते हो 2 दिन में, बीइंग द फर्स्ट टाइमर एज वेल। हाँ, इनके भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के मैंने अपने 1 पेज के कंपैरेटिव नोट्स जो बनाए हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। देन सिमिलरली जैसे हमने 2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किया, हम नेक्स्ट 2 दिन में डे नंबर 13 एंड 14 पे कवर करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। इसमें आपका एनएचआरसी आता है, सीआईसी आता है, सीवीसी आता है,
इन सारी बॉडीज को हम कवर करेंगे. दीज आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 56 टू चैप्टर नंबर 72. अगेन आई एम टेलिंग यू, स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स है, इसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है. पढ़ने के बाद जो शीट मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी उससे आप एक बार ही जाकर के ना उसको रिवाइज कर लेना सेम डे पर, ताकि आपके माइंड में फिक्स हो सके कि किसका किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, कौन किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है. ये जो बेसिक डिफरेंसेस है ये हमें पता होने चाहिए. ठीक. Then after day number 14 comes day number 15 and 16. अभी जो नेक्स्ट 2 दिन है ना, इसमें हम जितने भी लक्ष्मीकांत में इलेक्शन रिलेटेड चैप्टर्स है उनको कवर करेंगे. देखो, जो इलेक्शन कमीशन था वो ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कवर कर लिया है. अब जो बचे हुए चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 79 से लेकर के 86 तक, जिसमें आपके रिफॉर्म्स के ऊपर हो गया, आपका पॉलिटिकल एंड रीजनल पार्टीज के ऊपर हो गया, एंटी डिफेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया. ये सब हमें 2 दिन में कवर करना है आराम से, जो कि हो जाएगा. ठीक. देन आफ्टर इलेक्शन रिलेटेड चैप्टर हमें क्या करना है, डे नंबर 17 पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से यूपीएससी थोड़ा सा गेम अराउंड करके एक आधा क्वेश्चन हर साल प्री में या मेन में पूछ ही लेता है घुमा फिरा के. एंड दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया. आप में से मुझे बताओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा पार्ट है इसका, कौन सा आर्टिकल है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक. देन आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गया, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस है, जैसे कि आपका ये SC ST हो गया, यहाँ पे इनको आपको कवर करना है. दीज आर चैप्टर नंबर 73, 74, 75, 76 एंड 77. माइंडेड इसी सीक्वेंस पे पढ़ना जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे. लास्ट आपको डे नंबर 18 पे जो टॉपिक कवर करना है दैट इज योर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो पूरा आपका लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले 2 चैप्टर्स, इन्हें आपको कवर करना है. दीज आर चैप्टर नंबर 39 एंड चैप्टर नंबर 40. डे नंबर 18 तक आपको लक्ष्मीकांत में कौन से सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे कवर हो जाते हैं. एंड फिर भी आई हैव केप्ट 3 days, 19, 20 एंड 21 days, जो लास्ट के 3 दिन है, ऐसा एक्स्ट्रा डे की सपोज करो आपका किसी दिन कोई थोड़ा बहुत टारगेट मिस हो गया है, उसे आप यहाँ पे इन दिनों में आराम से कवर कर सकते हो. एक जो क्वेश्चन होता है कि जो लेफ्ट आउट चैप्टर्स है उनका क्या करना है, देखो उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें चाहे इग्नोर कर सकते हो, बट लेकिन अगर आपका मन है पढ़ने की कि आपको उन्हें एटलीस्ट एक रीडिंग तो देना है, तो उनको आप ये जो 3 दिन है इसमें दे सकते हो. बहुत ज्यादा चैप्टर्स वैसे भी बचे ही नहीं है. जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना मैक्सिमम, और उनको किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी डे 18 तक पूरा का पूरा कवर कर दिया है. ठीक है. देन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हमें क्या लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो इसके बारे में एक चीज समझ लो अभी कि आगे वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाया. आपको पूरे लक्ष्मीकांत के तो बिल्कुल नहीं बनाने हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें भी आपको हर एक टॉपिक के नहीं बनाने हैं. जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, देखो किसी को हो सकता है कि प्रेसिडेंट इजी लगे बट लेकिन पार्लियामेंट वाला चैप्टर डिफिकल्ट लगे याद करने में, किसी को पार्लियामेंट इजी लग सकता है लेकिन प्रेसिडेंट वाला डिफिकल्ट लग सकता है याद रखने में. तो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ उनके ही आपको नोट्स बनाने हैं. बिकॉज लक्ष्मीकांत जो बुक है वो ऑलरेडी एक नोट फॉर्मेट में ही दी हुई है. उसके अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे ना तो आपके, मैं बता रही हूँ, पूरी लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने में आपके 4 से 5 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. एंड एट द एंड यू विल फील कि यार इससे तो मैं कम से कम इस बुक को 1 महीने में ही पढ़ने के बाद 3 से 4 बार रिवाइज कर लेता, वो ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा बेनिफिट होता. एंड दैट इज द रियल ट्रूथ अबाउट इट एज वेल. तो आपको जो नोट्स बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ जो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है या एक पर्टिकुलर चैप्टर का कोई एक टॉपिक है वो आपको डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ उसी के आपको नोट्स बनाने हैं. जैसे कि मैंने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बनाए हुए हैं उसके, या जैसे कि मैंने उन चीजों के बनाए हुए हैं जिनके डेफिनेशन या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी हो गया, ये मेंशन नहीं है हमारे उसमें. तो कौन कौन सी चीजें मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, नोट बनाई हुई है. इस तरीके से आपको बनाना है. ठीक. इसमें भी आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको ये सीधे बुक फॉर्मेट में नोट नहीं बनाने हैं कि सब हेडिंग हेडिंग और ये सब चल रहे, नहीं. आप इसको नोट्स बनाइए क्वेश्चन कीवर्ड्स के फॉर्मेट में, जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ. क्योंकि ये जो है ना, अगर आप इनको आंसर कर लेंगे ये आपका इनडायरेक्टली आपके अपने नोट्स मीन्स स्टाइल के लिए भी रेडी हो जाते हैं, जो आपको मीन्स में बहुत हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है, कब वो इन पावर्स को यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्यों ये पावर्स इन्हें दी गई है. तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाना है. ठीक. इसके साथ साथ आप एक रेपोजिटरी या कलेक्शन साथ साथ बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप करंट अफेयर्स में पढ़ो. देखो लक्ष्मीकांत में लास्ट में आपको दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लेकिन उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में जजमेंट्स आप सुनते हो पढ़ते आए हो
उसके आपको एक छोटी सी रिपोजिटरी एक जगह बनाओ, ये काम आएगी ना तो सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आपको करंट अफेयर्स में मिलता है, उसको साथ साथ अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में ऐड करते जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक, तो आप जाकर के वहां पे लिखोगे हाँ मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी, उसका क्या रीजन था, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स की अपनी एक लिस्ट बनाते चलो पढ़ते टाइम। सिर्फ इतना आपको लक्ष्मीकांत के नोट्स पे करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत के रिवीजन मेथड की कि इसको आप रिवाइज कैसे करोगे, तो देखो एक तो होता है हमारा इनडायरेक्ट साइमल्टेनियस रिवीजन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको डेली बेसिस पे करना है, क्या, पीवाईक्यूज करके। दिस इज द थिंग दैट टॉपर्स डू। हम क्या करते हैं ना, यूजली सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ते चले जाते हैं और सोचते हैं कि पूरी लक्ष्मीकांत जब हम कवर कर लेंगे सिर्फ तभी हम जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। इससे आप कवर तो कर लोगे लेकिन आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन कैसे करूं। इसलिए जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको उसी दिन साइमल्टेनियसली उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आप एक या दो टेस्ट पेपर्स पॉलिटी के सॉल्व करते जाओ सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड। दिस इज व्हाट टॉपर्स जो, अगर टॉपर्स के इंटरव्यू सुनोगे ना, वो हर जगह यही सजेस्ट करते हैं। मैं ये गलतियां ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं खुद आपसे शेयर कर रही हूँ कि प्लीज आप ये गलतियां मत करिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये रिवीजन मेथड है लक्ष्मीकांत का, बिकॉज इतना छोटा छोटा फैक्ट है ना कि उसको आप 10 बार भी अगर आप पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं आप दे सकते कि आपको 11th टाइम वो विद इन दैट प्रेशर इन द एग्जाम हॉल याद आ ही जाएगा। सो द बेसिक थिंग इज कि अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में कोई चीज को याद करते हैं, वो जरूर हमें बहुत जल्दी हमारे एक सबकॉन्शियस मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है और हमें एग्जाम में हेल्प करती है, नहीं याद आ जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीलिम्स में पॉलिटी के ट्रेंड की, तो यहाँ देखो ये मैंने टोटल लास्ट 10 ईयर्स का पूरा ट्रेंड यहाँ दिया हुआ है। टोटल 175 क्वेश्चंस पूछे थे, यानी ऑन एन एवरेज 17 से 18 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको प्रीलिम्स में यहाँ से देखने को ही मिलेंगे। ठीक, एंड लक्ष्मीकांत से आई कैन टेल यू कि आप इनमें से आराम से 15 क्वेश्चंस बना सकते हो सिर्फ लक्ष्मीकांत के थ्रू। इसमें मैंने हालांकि 17 और 18 क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स की पॉलिटी वाले क्वेश्चंस इंक्लूड अभी नहीं किए हैं, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को किया है। बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो देखो जहाँ पे स्टैंडर्ड सोर्स है ना हमारा लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स में देखा गया है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रेट होता है वो एक वन ऑफ द स्टेटमेंट की फॉर्म में यूपीएससी पूछ लेता है। इसके अलावा आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल एंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, जुडिशियल रिव्यू पर, लिबर्टी इक्वालिटी का क्या रिलेशन है उस पर, करंट बेस्ड क्वेश्चंस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमेशा आते हैं। लेकिन एक जो पोर्शन होता है हाईली नेग्लेक्टेड, दैट इज द गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल प्रिजन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हमें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डील करना है उसको मैं कभी लेटर ऑन एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगी, सो दैट आपसे ये पार्ट मिस ना हो। कुछ ये पोर्शन ऑलरेडी आपका करंट अफेयर्स में कवर होता है, लेकिन इस तरीके के जो एक्ट्स है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, प्रिजन एक्ट, जो भी थोड़ा बहुत न्यूज में होता है ना, उसको यार देख के चला करो, बिकॉज वहां से यूपीएससी डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन दे देता है। एंड अगर आप इसको याद रखोगे तो ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा इन योर आंसर राइटिंग कंटेंट, है ना। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देख ले जल्दी से, तो देखो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एक ब्लॉक है। यहाँ से टोटल लास्ट 10 ईयर्स में 28 टू 30 क्वेश्चन पूछे गए, यानी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये टॉपिक आपको कवर करना है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ से भी आपको 28 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पे ज्यादातर फोकस होता है बिल्स के रिगार्डिंग। स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, कोई भी एक्ट हो सकते हैं, लाइक आर्म्स एक्ट के ऊपर हो गया या मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के ऊपर हो गया। अच्छा मुझे बताना कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट सिर्फ एक ही जगह मेंशन है, ये कौन सा आर्टिकल नंबर है जहां पे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट मेंशन है? ठीक, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताना। ठीक, उसके अलावा आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, जिसमें आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कवर करते हो। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल यहाँ से जरूर मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। देन कम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द वेरी हाईली इग्नोर्ड पार्ट।
बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इट इज इंपॉर्टेंट यार। यहाँ से यूपीएससी ने ना सिंस लास्ट 5 to 6 years काफी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया, सो डोंट मिस दिस। इसके अलावा जुडिशरी एक बार के लिए आई विल से कि आप इसको स्किप कर सकते हो एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इतना ज्यादा फोकस में लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो पार्ट्स, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, डेफिनेटली दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछे जा, बिकॉज यूपीएससी ने एज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स पूछ लेता है क्वेश्चन में। इनके अलावा आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कवर करना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पॉलिटी जिनको आपको मिस नहीं करना है। आई होप इस वीडियो से आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिली होगी लक्ष्मीकांत के बारे में, पॉलिटी को कैसे डील करना है फॉर प्रीलिम्स उसके बारे में। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।